Hello dear students, today we will continue lesson number 2 in Flamingo. See from here, it is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a God-given lineage ever be broken? She implies, born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every seven color born out of the seven colors of the rainbow. Lie in mounds in unkempt yards, are piled on four-wheeled hand carts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. And in dark hutments, next to lines of lamps of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. So students, in this paragraph, the writer has described about the pitiable conditions of the young boys and girls who work there in the dark furnaces. Also, the pitiful situation of the bangle makers who live their life in extreme poverty. See here, Mukesh's grandmother says that it is his karma, his destiny. Actually, she is trying to say that their impoverished condition is because of their destiny, is because of their karma. They can do nothing except bangle making. She has always seen her own husband becoming blind with the dust from polishing the glass of bangles. Since her husband, means Mukesh's grandfather, worked in dark furnaces, in bangle making furnaces, so there he polishes the glasses of bangles. Doing so, the dust particles that emit out while polishing the glass bangles make the eyes blind, and the lady had seen her own husband getting blind. So she says that it is their कर्म, it is their destiny. वो इसलिए ऐसा कहती है कि यही उनकी किस्मत है, यही उनका कर्म है. They can do nothing except polishing and making the glass bangles, and it is their destiny, it is their fate, यही उनकी किस्मत है. They can do nothing except this job. Now she bends to think that can a God-given lineage ever be broken? क्या ये जो परंपरागत ईश्वर द्वारा जो बनाई गई एक जो ये ढर्रा चला जा रहा है, एक ये जो लाइनेज बना हुआ है, एक जो एंसेस्टर के समय से एक जो ट्रेडिशन, एक कल्चर, फैमिली लाइनेज है, फैमिली कल्चर है, जिसको ये फॉलो करते चले आए, क्या कभी टूटेगा कि नहीं टूटेगा? मीन्स शी इज थिंकिंग दैट whether her grandchildren be able to break that God-given lineage and they may settle into some other professions or businesses. क्या कभी ऐसा हो सकता है? और they will also continue to be bangle makers, या वो भी ऐसे ही रहते हैं, bangle maker ही बने रह जाएंगे. If so, then they will also face the same destiny. अगर ऐसा ही होता है तो उनकी भी किस्मत वही रहने वाली है. She implies while saying this sentence. इस बात को वो काफ़ी ज़ोर से कहती है, दबाव के साथ, काफ़ी प्रेशर के साथ इस चीज़ को बताना चाह रही है. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. अब चूँकि वो बैंगल मेकर्स की फैमिली में पैदा हुए हैं, वही उनका जन्म हुआ, तो वो कुछ देखे हैं नहीं सिवा बैंगल मेकिंग के. Bangles are seen everywhere in the houses, whether it is the yard or every other house, even in every other lane. Every street of Firozabad is full of bangles. Now, she describes about, the writer is here describing about the different types of bangles he has seen, like spirals of bangles having golden color, paddy green color, royal blue color, pink, purple, every color born out of the seven main colors of the rainbow. जो रेनबो के सेवन कलर्स होते हैं, उस मेन कलर से इमर्ज जितने भी कलर्स हो सकते हैं डेवलप करके, वो डिफरेंट टाइप के कलर के
जो बेंगल्स होती हैं, दैट बेंगल्स कैन बी सीन इन लाइंग इन माउंट्स इन फिरोज़ाबाद लेंस। फिरोज़ाबाद के लेंस में, हाउसेज में डिफरेंट कलर्स की आपको बेंगल्स मिल जाएंगे। ओके, दे लाई इन माउंट्स, वो ढेर में उनको रखा जाता है। इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, बिल्कुल ही चेस्ड कंडीशन में, मतलब तितर बितर। अनकेम्प्ड का मतलब होता है नॉट प्रॉपरली केप्ट, जो सही से कीप नहीं किया गया हो, डेट हैज़ बिन नॉट बी प्रॉपरली मेंटेन्ड। सो जो यार्ड्स होते हैं वो अनक्लीन होते हैं, अनकेम्प्ड होते हैं, डिसऑर्डर्ड होते हैं, चेस्ड कंडीशन में होते हैं, चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती हैं। एंड आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट, फिर जो बेंगल्स होती हैं उनको पाइलअप कर दिया जाता है ये हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे के ठेले के ऊपर, जिसे कि यंग मैन क्या करते हैं, पुश करते हुए उस शैंटी टाउन के, उस एक तरह से कह सकते हो कि डर्टी टाउन के गंदे नैरो लेन से, सकरी गलियों से उनको लेकर के वो ठेलों को खींचते हुए जाते हैं। फाइनली दे रीच डार्क हटमेंट्स, फिर वो पहुंच जाते हैं अंधेरे उन कॉटेजेस में, हटमेंट्स में, जिसको कि फर्नेस आप कह सकते हैं यहाँ पे, और उन फर्नेस पे जा करके बच्चों को दे दिया जाता है। नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ लैम्प्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, वहाँ बिल्कुल तिलमिलाती हुई जो ऑयल लैम्प होती है उसकी जो फ्लिकरिंग फ्लेम्स होते हैं, यानी हिलती डुलती जो लैम्प की बत्ती है, उसके सामने सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, बच्चे बैठे हुए हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु आर एक्चुअली हियर लेबर्स, दे become busy with their fathers and mothers welding the pieces of colored glass into the circles of bangles। वो जो छल्ले होते हैं उस पर डिफरेंट टाइप की जो डिज़ाइंस होती हैं, डिफरेंट टाइप की जो पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास होती हैं, उसको वो वेल्डिंग करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं, गिविंग शेप एंड डिज़ाइन टू द ब्लैंक सर्किल ऑफ बैंगल्स। जो सादे बैंगल के सर्कल्स होते हैं, यानी छल्ले होते हैं, स्पायरल्स होते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन देते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी जो आंखें होती हैं ये ज़्यादा एडजस्टेड हो जाती हैं डार्क में काम करते करते, इन कंपेरिजन टू द लाइट आउटसाइड। दैट इज़ वाई दे ऑफन बिकम ब्लाइंड बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। इसलिए ऐसा होता है कि वो जवान होने से पहले ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट Mukesh, who is a bangle maker. Now there is also a girl who is also a bangle maker belonging from same Firozabad. Her name is Savita. She is a young girl and she is wearing very dark pink dress. Sits alongside, drab is a dark pink dress. Sits alongside an elderly woman. उसके बगल में एक वृद्ध महिला बैठी है. Both are soldering pieces of glass. Actually Savita is here soldering pieces of glass. महिला भी वहाँ काम कर रही होगी और साथ में सविता भी क्या कर रही है, वो इस जो ग्लास स्पाइरल्स हैं उनके ऊपर जो है सोल्डरिंग कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, सविता इज सो मच एडाप्टेड एंड एडजस्टेड इन हर टू हर वर्क दैट हर हैंड्स आर मूविंग मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन। एक बड़ी हैवी मशीन होती है, जैसे उसकी जो हैवी हैंड होता है, जो टोंग होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो सविता है उसके जो हैंड से मैकेनिकली चल रहे हैं। मीन्स शी हैज़ नॉट टू थिंक व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे क्या करना उसे सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप उसके हाथ जो काम करने हैं वहाँ पे चले जा रहे हैं। आई वंडर इफ़ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स में। मुझे आश्चर्य होता है, मैं सोचती हूँ कि क्या उसे पता भी है कि जिन बैंगल्स को बना रही है उसकी पवित्रता क्या है, व्हाट इज़ द सेक्रेड रिलेशन, व्हाट इज़ द पायसनेस रिलेटेड टू द बैंगल्स विच इज़ मेकिंग। जो बना रही है या जिसे हेल्प कर रही है बनाने में, उसकी सैंक्टिटी क्या है, उसकी पायसनेस क्या है, उसे पता भी है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग। एक्चुअली जो बैंगल्स होती है इन इंडियन कल्चर एंड सोसाइटीज़, इट सिम्बलाइजेज वुमेन सुहाग, वो किसी भी वुमेन के सुहाग को दर्शाती है। इट डिस्क्राइब्स दैट, इट इंडिकेट्स दैट अ वुमेन हु इज़ वेयरिंग बैंगल्स माइट हैव ए हस्बैंड। उसकी शादी हो चुकी है, शी हैज़ बिन मैरिड एंड शी इज़ हैविंग ए हस्बैंड। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, एक्चुअली बैंगल्स आर the things which are the symbols of auspiciousness in marriage, जो auspiciousness की symbol होते हैं शादी के लिए, शादी में। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. She will then become a bride like the old woman beside her who became one many years ago. She still has bangles on her wrist. राइटर कहती है, अ डे विल कम व्हेन शी विल आल्सो गेट मैरिड एंड हर हेड विल बी ड्रेप्ड विथ रेड विल। उसके जो सिर है यानी उसकी जो ललाट है वो भी कभी जो है लाल घूंघट से उसे ढका जाएगा। एंड हर हैंड्स विल बी टाइड
विथ रेड हिना, और लाल रंग की जो मेहंदी उसके हाथों पे कभी चढ़ेगी। शी विल वियर रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर हैंड्स, उसे भी लाल रंग की चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी। ऑल दिस थिंग्स आर द सिम्बॉलिक ऑफ मैरिज ऑफ ए गर्ल, ठीक है। शी विल देन बिकम ए ब्राइड एंड दस शी विल बिकम ए ब्राइड, वो भी दुल्हन बन जाएगी। एंड लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैन ईयर, बिल्कुल उसी महिला की तरह जो ओल्ड वुमेन उसके बगल में बैठी है, जो सालों पहले कभी बिल्कुल इसी तरीके से उसकी भी शादी हुई होगी। शी स्टिल हैज़ ए बैंगल्स ऑन हर रेस्ट, उस महिला के हाथों में अभी भी, कलाई में अभी भी बैंगल्स हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में अब लाइट रोशनी नहीं रही। शी सेज इन ए वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, जो महिला है, द ओल्ड वुमेन हु सिटिंग बिसाइड सविता, शी इज़ सेइंग समथिंग विदाउट जॉय, कुछ बिना खुशी के, इन मीन्स इन ए सैडफुल मैनर शी सेज दैट, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं मिलता, नहीं खाया, ये उसकी कंप्लेन है। शी इज़ मेकिंग अ कंप्लेन दैट शी हैज़ नॉट इवन ईटन अ मील प्रॉपरली इन अ डे, एक दिन में एक मील भी उसने तरीके से, सही तरीके से नहीं खाया। शी इज़ दिस इज़ वॉट शी हैज़ रिप्ड थ्रू आउट हर लाइफ, शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, पूरे जीवन भर में उसने एक सही से एक टाइम भोजन नहीं किया। डेट्स वॉट शी हैज़ रिप्ड, यही उसने खेती की, यही उसने फसल काटा अपने जीवन में। दिस इज़ वॉट शी हैज़ रिप्ड। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. And she has a husband. He also complains that, or he also admits that he had done nothing except making a house for his family. And he knew nothing except bangle making. उसे सिवाय बैंगल मेकिंग के कुछ नहीं आता, और वो अपने लाइफ टाइम में कुछ नहीं कर पाया एक्सेप्ट मेकिंग अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन हर लाइफ टाइम, इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। उनकी बातों को सुन करके, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वो जो वुमेन है उसके हस्बैंड की बात को अगर सुना जाए और समझा जाए तो ऐसा लगेगा कि एक्चुअली ही इज़ हैप्पी। One can get wondered that he has been even able to achieve what many have failed to achieve. ऐसा लगेगा कि वो जो व्यक्ति है वो चीज़ हासिल कर लिया जिसे हासिल करने में बहुत लोग चूक गए। He has a roof over his head. This is what he has achieved. At least he has managed to build a house for his family. This thing many have failed to achieve in their life. बहुत लोग इसी चीज़ को अपने जीवन में हासिल करने में चूक गए, लेकिन कम से कम वो इसे हासिल कर पाया। सो दिस इज ए जॉय इन ए वे फॉर हिम। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन एनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। अगर वहाँ के लोगों की बात सुनी जाए, समझी जाए, तो आप सोसाइटी में अगर फिरोज़ाबाद के ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा दैट एवरी पर्सन, एवरी मैन ऑफ फिरोज़ाबाद क्राई फॉर व्हाट? फॉर नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग। किस चीज़ की आपको चीख पुकार सुनाई देगी हर व्यक्ति द्वारा कि किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बिजनेस को, वो कोई दूसरा कुछ कर सकें एक्सेप्ट इस बिजनेस को कैरी ऑन करने के सिवा। मीन्स बैंगल मेकिंग इज़ द ओनली बिजनेस दैट दे कुड कैरी ऑन, एक्सेप्ट दिस दे हैव नथिंग टू डू, दे कैन डू नथिंग बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी की वजह से। नॉट इवन एनफ टू ईट, यहाँ तक कि अगर बिजनेस को छोड़ दिया जाए तो उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो कुछ खा सकें। दिस इज़ द क्राई, दिस इज़ द पेन दैट रिंग्स इन एवरी होम। यही दर्द, यही तकलीफ आपको हर घरों में सुनाई देगी। जो यंग मैन हैं दे इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, ये अपने एल्डर्स की तकलीफ को, दुख को गाते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, और ये समय के साथ बहुत कम बदला। इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद में अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि समय के साथ वहाँ बहुत ही कम बदलाव हुआ है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। वहाँ पे जो एल्डर्स हैं और उनके जो फोरफादर्स रहे होंगे, ईयर्स दे हैव स्पेंड
टॉयलिंग हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम करते हुए अपना वो वर्ष बिता दिए। मेनी जनरेशंस है पास्ट हु मेक माइंड नंबिंग टॉयल, जिन्होंने इतना मेहनत किया कि देर शाम होते आदमी को बेहोशी आ जाए और वो सुस्त हो जाए और वो सुन्न हो जाए उसका दिमाग। माइंड नंबिंग टॉयल मीन्स सच ए हार्ड लेबर दैट कैन मेक एनी वन सो मच टायर्ड दैट soon they will go to bed and sleep down having a little food even after getting a little food। अगर हल्का भी भोजन मिल जाए, काम के बोझ करके काम के बोझ इतने थक जाते हैं कि वो एक तरह से समझिए कि वो उनका दिमाग सुन्न हो जाता है। ऐसे मेहनत को जिसमें कि आदमी काम करके बुरी तरह से थक जाता है उसको कहा जाता है माइंड नंबिंग टॉयल। एंड दिस टॉयल जनरेशंस ऑफ फिरोजाबाद आर डूइंग and have done also, have killed all initiative, or this is why that there is no chance of making any new initiative, any chance of making new initiative has been killed, and the ability to dream, वहाँ पे कोई नया चीज़ सोचना, कोई नया चीज़ करना ऐसा मुश्किल है, क्योंकि वो सारे चांसेस जो वहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, किल हो चुके हैं। Okay dear students, I will finish this chapter in my next video. Thank you.